Hello, my dear students. How are you all? Today, I am going to take forward my discussion upon John Dryden. In my previous part of this video, I have discussed about his major works like Estria Redux. I have discussed about heroic stanzas and the part 1 of Absalom and Achitophel, and also talked about the plays, heroic plays that he has written, and also the blank verse play, All for Love, World Well Lost, that he has written, basing his claim upon Shakespeare's Antony and Cleopatra. And in today's video, I am going to take forward my discussion upon his later works, the most important works. Knowing the major works of a writer are very important, and videos like this can help you in sidelining the major works that an author has written. So we are going to take forward our discussion from Absalom and Achito itself. Absalom and Achitophel is a political satire. It is based upon the biblical story of King David, his son Absalom, and his friend Achitophel. How that story served as a base to the current situation of England, where we have King Charles II and his brother James and his illegitimate son James. And in the part 2 of Absalom and Achitophel, we can see that the part 2 has been written by Nahum Tate. Only 200 across lines have been written by John Dryden, but in those 200 lines, he has made characters like Og and Zimri representing Thomas Shadwell and also representing Lord Buckingham. Much important writers, asked writers, Og का कैरेक्टर, जिमरी का कैरेक्टर हमें पार्ट 2 में देखने को मिलता है, और एक अनदर राइटर को इसमें यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है इन द पार्ट 2 alongside Thomas Shadwell. He is criticizing Elkanah Settle, another dramatist of the day. So Absalom Achitophel is a political work, and when John Dryden became royal historiographer, by the time he has already written the first work that is in discussion today, as you can see on the screen behind me, Essay on Dramatic Poesy. This made him the father of English criticism. John Dryden is such important person, such important writer of English literature, not merely of 17th century, but to complete English literature. John Dryden is very influential writer. His works are asked, his characters are asked. इस राइटर्स में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अक्रॉस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, और इन राइटर को प्रिस्क्राइब भी किया गया है काफी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के सिलेबाई में, मास्टर डिग्रीज में, बैचलर डिग्रीज में हम इन्हें पढ़ते हैं. बहुत इन्फ्लुएंशियल राइटर हैं. इनका एक वर्क है, क्रिटिकल ऐसे है, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. बट बिकॉज यूट्यूब पे इतना सब डिटेल में पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है, हम बात करेंगे ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी में क्या है. ये क्रिटिकल ऐसे है. इस ऐसे में देयर आर 4 कैरेक्टर्स नेम्ड एज यूजीनियस, क्रिटीज, लिसिडिस एंड निएंडर. Talking about, as a title of it says, ड्रामेटिक पोएट्री क्या होती है, ड्रामा क्या होता है. जैसे एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को फेवर किया है, यहाँ पर जॉन ड्राइडन ड्रामा, क्योंकि एक डिक्लाइनिंग जॉनरा बन रहा था, यहाँ पर ड्रामा को उसकी लॉन्ग लॉस्ट रिस्पेक्ट दिलवाने के लिए. क्यों ड्रामा ने रिस्पेक्ट लूज कर दी थी? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ड्रामा वाज बैंड ड्यूरिंग द प्यूरिटन एंड इंटररेग्नम पीरियड इन 1642 व्हेन किंग चार्ल्स I was beheaded in the year 1649. उसके बाद जब किंग चार्ल्स II आए, थिएटर्स को रीओपन किया गया, इमोरालिटी आया, जिसकी बात हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में की है. तो ड्रामा को उसकी लॉन्ग लॉस्ट रिस्पेक्ट दिलवाने के लिए जॉन ड्राइडन ने एक क्रिटिकल ऐसे लिखा है, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, पब्लिश्ड इन द ईयर 1666. यहाँ पर वो 4 कैरेक्टर्स हैं जो बार्ज पर, शिप के बार्ज पर बैठकर बात कर रहे हैं, बार्ज पर बैठकर बात कर रहे हैं कि ये 4 कैरेक्टर्स, यूजाइनस कह रहे हैं कि मॉडर्न ड्रामेटिस्ट अच्छे हैं,
क्रिटीज कह रहे हैं एंशियंट ड्रामेटिस्ट अच्छे हैं, लिसिडियस कह रहे हैं फ्रेंच ड्रामेटिस्ट अच्छे हैं क्योंकि वो क्लासिकल हैं। लेकिन निएंडर जो कि ड्राइडन की वॉइस है, PYQ है, पेपर में पूछा गया है, इन सब 4 कैरेक्टर्स में हमें ड्राइडन की वॉइस देखने को कहां पर मिलती है? तो वी कैन सी निएंडर एज द स्पोक्स पर्सन ऑफ ड्राइडन, जो कि फेवर कर रहे हैं मॉडर्न ड्रामेटिस्ट को, मॉडर्न ड्रामेटिस्ट, मॉडर्न इंग्लिश ड्रामेटिस्ट को, जो कि ब्लेंड है एंशियंट का भी, एंशियंट का, मॉडर्न का, दोनों का ब्लेंड है हमारे रिलायबल मॉडर्न इंग्लिश राइटर्स। तो ये ऐसे इस तरीके से चलता है। बट इस क्रिटिकल ट्रीटीज को बहुत ज्यादा फेवर किया गया है। इसी क्रिटिकल ट्रीटीज ने ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म का टाइटल ला करके दिया है। डॉक्टर जॉनसन, जो कि ड्राइडन को बहुत ज्यादा फेवर करते हैं, उन्होंने कहा है he found English language, English literature as a brick and made it marble. So वो एक कॉर्नरस्टोन है, वो एक मेन रूट है हमारी इंग्लिश लिटरेचर के, बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव एंड इन्फ्लुएंशियल राइटर हैं। So essay on dramatic poesy published in the year 1666 and talks about it's based upon the conversation of 4 people upon barge, and they are talking about the situation of the drama, and Neander, who represents Dryden, favors modern English dramatists. And then we have one of the most important works written by जॉन ड्राइडन, बहुत सी यूनिवर्सिटीज में प्रिस्क्राइब किया गया है, इसका टेक्सचुअल एनालिसिस भी करते हैं, टेक्स्ट वाइज भी इसे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, वर्क है एप्सिलॉन मैकीटोफेल की ही तरह, जो कि है हमारा मैकफ्लेक्नो, 1682 में पब्लिश हुआ है। लिखा उससे पहले गया है 1678 में, 1682 में इसकी पब्लिकेशन की गई है। The subtitle is A Satire upon True Blue Protestant Poet T.S. यहाँ पर T.S. है थॉमस शैडवेल, थॉमस शैडवेल। थॉमस शैडवेल इनके एक कंटेम्प्ररी राइटर है, ज्यादा फेमस राइटर नहीं है, बट दोनों ड्राइडन एंड शैडवेल के बीच में सीरीज ऑफ डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, फेवर नहीं था, दोनों ऑपोजिट थे, एक्सट्रीम्स थे। शैडवेल जॉनसन को फेवर करते थे, ड्राइडन शेक्सपियर को फेवर करते थे। शैडवेल विग थे, हमारे ड्राइडन एक टॉरी पार्टी से बिलोंग करते थे। तो सीरीज ऑफ डिसएग्रीमेंट चला। एप्सिलॉन एंड मैकीटोफेल में भी हमने देखा है थॉमस शैडवेल को अटैक किया जा रहा है, बट माय गॉड, मैकफ्लेक्नो में जो थॉमस शैडवेल को अटैक किया गया है, टेक माय सजेशन, टेक्स्ट बाय टेक्स्ट, वर्ड बाय वर्ड, इस पोम की स्टडी जरूर कीजिएगा। ही इज गोइंग टू असेंड अ थ्रोन। थॉमस शैडवेल एक थ्रोन को असेंड करने वाले हैं एज मैकफ्लेक्नो, और किसे असेंड करने वाले हैं? थ्रोन ऑफ स्टूपिडिटी को। माय गॉड, आई कैन नॉट बिलीव हाउ शैडवेल काइंड ऑफ रेड दैट, उन्होंने उस वर्क को कैसे रीड किया होगा, किस तरीके से वर्क को, सटायरिकल वर्क है, वर्स में लिखा गया है, कॉमेडी है, और स्टाइल इतना हाइप्ड है, इतना हाई इवेंट चल रहा है, इतना मेजर इवेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस दैट फ्लेक्नो इज गोइंग टू डिसाइड दैट हु विल असेंड माय थ्रोन, एंड दैट थ्रोन इज थ्रोन ऑफ स्टूपिडिटी ओनली। एंड हाउ थॉमस शैडवेल, हु इज रिप्रेजेंटेड एज मैकफ्लेक्नो इन द पोएम, how he is going to ascend the throne। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, मैकफ्लेक्नो को जरूर रीड कीजिएगा। 1682 पब्लिकेशन डेट है। एंड आफ्टर मैक, और ये एक कॉमिक वर्स है, कॉमिक वर्स जो कि एक सटायरिकल वर्स है। मोक हेरोइक सटायर इन वर्स, इट इज मोक हेरोइक पोएम, मॉकरी की गई है लेकिन हेरोइक स्टाइल में देख सकते हैं, मॉकरी की गई है, कॉमेडी की गई है, स्टाइल ऑफ राइटिंग इज heroic। And in the same year, another third work in this discussion today is Religio Laici। Religio Laici 1682 में पब्लिश किया गया है। 1682 is the year जब किंग जेम्स रूल कर रहे हैं। यहाँ पर किंग चार्ल्स रूल कर रहे हैं। तब प्रोटेस्टेंटिज्म था, एंग्लिकन चर्च थी। अब इनका उत्तराधिकारी अभी डिसाइड नहीं हुआ था, किंग चार्ल्स II रूल कर रहे हैं।
तो इट मीन्स रिलीजन ऑफ द डे। द वर्क इज बेस्ड अपॉन, ऐसा ही सेम नेम हमने रीड किया है थॉमस ब्राउन के वक्त, रिलीजियो मेडिसी में। सो ड्यूरिंग दिस टाइम एंग्लिकनिज्म था, इंग्लिश एंग्लिकन चर्च थी, तो इस दौरान एंग्लिकनिज्म को फेवर कर रहे हैं। फ्लिप देखिएगा, from this work to this work you can know, you can understand the true diplomacy of John Dryden। जब तक किंग चार्ल्स II है, एंग्लिकनिज्म है, प्रोटेस्टेंटिज्म है, ओपनली कैथोलिक नहीं थे वो। उन्होंने मैरिज एक कैथोलिक प्रिंसेस से की थी, बट उत्तराधिकारी कोई भी नहीं था क्योंकि उनका कोई भी लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं था कैथोलिक प्रिंसेस के थ्रू। तो यहाँ पर किसको किंग बनाया जाए, जेम्स वन लेजिटिमेट इलेजिटिमेट सन को बनाया जाए या जेम्स एक ब्रदर को बनाया जाए? तो जेम्स जो थे ब्रदर थे वो कैथोलिक थे। ये सेम डिबेट हमने एब्सलॉम एंड अकीटोफेल में भी देखी है। दैट वाज अ मेन डिबेट ऑफ द डे। सो रिलीजियो मेडिसी, रिलीजियो लेशी इज द वर्क दैट इज बेस्ड अपॉन द रिलीजन ऑफ द डे। उस वक्त का रिलीजन कैसा था? ड्राइडन फ्लो के साथ चलते थे। एंग्लिकनिज्म था तो हमारे ड्राइडन यहाँ पर एंग्लिकनिज्म को फेवर कर रहे हैं और साथ साथ लिख रहे हैं अपना वर्क रिलीजियो लेसी। Now you can understand in the very next work published in the year 1686, King Charles II has passed away in the year 1685 और 1686 में रूल किसका स्टार्ट हुआ? जेम्स जो कैथोलिक ब्रदर था, उन्होंने 2 to 3 years ही रूल किया था क्योंकि उसके बाद ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ब्लडलेस रेवोल्यूशन हो गया था। तो 1686 में हमारे ड्राइडन का एक वर्क आया जो कि था द हाइंड एंड द पैंथर। द वर्क वेरी इंपॉर्टेंट, द वर्क इज बेस्ड अपॉन ड्राइडन्स कन्वर्जन टू कैथोलिसिज्म। अब हमारे ड्राइडन कैथोलिक बन गए हैं क्योंकि किंग कैथोलिक आ चुका है। किंग जेम्स वन को फेवर करते हुए ये एक बीस्ट फेबल लिखा गया है, किंग जेम्स II को फेवर करते हुए। अब बीस्ट फेबल क्या होता है? एनिमल्स की मदद से एनिमल्स को कैरेक्टराइज किया जाता है, उन्हें ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दी जाती हैं, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया जाता है। सो द हाइंड एंड द पैंथर, ड्राइडन कन्वर्टेड टू कैथोलिसिज्म। हाइंड्स हमारे कैथोलिक्स है, पैंथर्स हमारे एंग्लिकन्स है। हमारे पास कैरेक्टर्स हैं हेयर्स, वॉल्स, बेयर्स एंड एप्स दैट स्टैंड फॉर क्वेकर्स, प्रेस्बिटेरियन एंड फ्री थिंकर्स। तो ये एक बीस्ट फेबल वर्क है, बट कैन यू अंडरस्टैंड द डिप्लोमेसी ऑफ आवर राइटर, हाउ फ्लक्चुएटिंग ही इज इन हिज थॉट्स, but very important in every sense of the word। The Hind and the Panther, यहाँ पर ये वर्क ड्राइडन के कैथोलिसिज्म के कन्वर्जन पर इन द ईयर 1686 में लिखा गया है। And after that we have the year 1688, glorious revolution, king and queen बने थे विलियम एंड मैरी। ये लोग अब प्रोटेस्टेंट हैं। अगर हमारे ड्राइडन ने कैथोलिक में कन्वर्ट कर लिया है, रिलीजन चेंज कर लिया है, ही इज नाउ गोइंग टू लूज ऑल हिज पॉलिटिकल पावर्स। ये पोएट लॉरिएट नहीं रहेंगे, रॉयल हिस्टोरियोग्राफर नहीं रहेंगे, ही लॉस्ट ऑल हिज पावर्स। उसके बाद उन्होंने लिखा ओड्स, लिरिकल पोएम्स लाइक अलेक्जेंडर फीस्ट, द पावर ऑफ म्यूजिक एंड ऑड इन द ऑनर ऑफ सेंट सिसिलिया's डे। सेंट सिसिलिया है यहाँ पर पैट्रन ऑफ म्यूजिक। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में PYQ है पूछा गया है कौन से पैट्रन ऑफ म्यूजिक के लिए ये पोम लिखी गई है। सेंट सिसिलिया कौन है? पैट्रन ऑफ म्यूजिक है। लिरिकल पोएम्स है, ओड्स है, पिंडारिक ओड्स हैं। सो विद दैट आई हैव कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। बट डिस्कशन यहाँ पर खत्म नहीं होती है, डिबेट यहाँ पर स्टार्ट होती है। हमने ड्राइडन के इंपॉर्टेंट वर्क्स को टेकअप किया है, माइनर वर्क्स को भी, मेजर वर्क्स को भी। बट आपकी ड्यूटी क्या है? आपको टेक्स्ट को टेकअप करना है, टेक्सचुअल एनालिसिस करना है। एब्सलॉम एंड अकीटोफेल, मैकफ्लेक्नो और ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, इनको डिटेल में करना है। इनके मेजर कोट्स को, मेजर लाइंस को, मेजर कैरेक्टर्स को, ओग को पूछा गया है, जिमरी को पूछा गया है, निएंडर को पूछा गया है। तो डिस्कशन यहाँ पर हम आपको गाइड कर सकते हैं। बट अगर आप स्पेसिफिक किसी वर्क पर कोई वीडियो चाहते हैं, मैं हमेशा से कहती आई हूँ, आप मेल कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस टॉपिक को टेकअप
करूं। एंड विद दैट आई कम टू द डिस्कशन ऑफ जॉन ड्राइडन। देखा कितने डिप्लोमैट थे, कैसे पार्लियामेंटेरियन थे, फंडामेंटलिस्ट थे। आज इन तरीके के राइटर्स को हम क्रिटिसाइज करते हैं, बट जॉन ड्राइडन वाज अ कॉन्क्रीट मैन, वेरी इंपॉर्टेंट मैन। ही लेफ्ट इंग्लिश लिटरेचर एज अ मार्बल। इन्होंने रूट्स को स्ट्रेंथन किया है, हमें एक बेस दिया है रिप्रेजेंटेशन से। अपनी 17th सेंचुरी को आप समझने के लिए मिल्टन को पढ़िए, पोप को पढ़िए, ड्राइडन को पढ़िए। You will get to know the main gist, the main aura of 17th century. Thank you. Have a nice day.